Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. Today I am going to deliver a lecture on linear applications of operational amplifier and today's topic of discussion is Schmitt trigger. The course outcome for this course has troubleshoot various applications of op-amp for the given specification. I have already uh, discussed about this course outcome as in this course we will having some specification and will able to troubleshoot the applications of op-amp. Chart shows CO and PO mapping. Here the CO3 getting mapped with PO 1, 2, 3, 4, 6 and 7. How this CO getting mapped with this all these POs I have already discussed about it in the last lecture. The learning outcome for this course. After the completion of this course, students will be able to, it means you will be able to draw the circuit diagram of Schmitt trigger. आप लोग उसका circuit diagram निकाल सकते हो. उसके बाद में you can able to describe the operation of op-amp based Schmitt trigger with neat circuit diagram. अगर आप लोग उसकी circuit diagram निकाल सकते हो तो you can be able to describe how this with this circuit diagram Schmitt trigger is working. You can able to give the uses of Schmitt trigger. आप लोग Schmitt trigger कहाँ यूज होता है ये भी आप लोग बता सकते हो. In the last lecture we were studied about concept of zero crossing detector. आप लोगों को बताया था कि जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या होता है और कैसे ये जीरो को एक्सीड करने के बाद कैसे ये आउटपुट देता है फ्रॉम द इनपुट साइड. ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. उसके बाद में उसके अपन ने दो टाइप देखे थे. वन इज द नॉन इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. उसके वेव फॉर्म्स भी आप लोगों को ड्रॉ करके बताए गए थे. उसके बाद में इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर विथ नीट वेव फॉर्म. ये भी मैंने आप लोगों को बताया था. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्मिथ ट्रिगर. अभी देखो स्मिथ ट्रिगर क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कुछ ड्रॉबैक्स आप लोगों के जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में आए थे जो कि एक वन ऑफ द कंपैरेटर विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द साइन वेव into the square wave. बराबर है. Similarly, Schmitt trigger it is one of the type of comparator and इसका भी यूज होता है बट इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस है कि any irregular shape rather than that of the sinusoidal wave it can be able to convert that irregular shapes into the square wave. So let's start. So it is an inverting comparator with positive feedback. It is one of the inverting comparator with positive feedback. उसके बाद में it can be used to convert any irregular shaped waveform into a square wave or a pulse. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया it can be used to convert any irregular shaped waveform into a square wave or a pulse. Then it is also known as a squaring circuit. आप लोग इसको squaring circuit भी बोल सकते हो. Then as a feedback employed it can be referred as a regenerative comparator. जैसे कि इसको आप लोग एक पॉजिटिव फीडबैक देते हो जिसके कारण इसको आप लोग रीजनरेटिव कंपैरेटर भी बोला जाता था. मैंने आप लोगों को जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में कुछ ड्रॉबैक्स बताए थे और वो ड्रॉबैक्स भर के निकालने के लिए अपन एक सर्किट यूज करते थे जिसको अपन रीजनरेटिव कंपैरेटर बोलते थे. तो सेम वही चीज कि जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में जो भी ड्रॉबैक्स आए हैं उस ड्रॉबैक्स को आप लोगों को मतलब आगे लाने के लिए और उसको उभर के लेके आने के लिए आप लोग इसको स्मिथ ट्रिगर को यूज करते हो for the conversion of any irregular shape into the square wave. A positive feedback which is used to avoid problems due to noise superimposed on the input signal. Same problem आप लोगों का जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में आ रहा था. कैसे आ रहा था कि जैसे आप लोगों ने बोला था कि अगर जैसे जीरो को इनपुट सिग्नल में जीरो को एक्सीड किया क्रॉस किया अगर उसको क्रॉस करके जाने तक के अगर टाइम लगता है तो उतने टाइम पीरियड में उस सिग्नल में क्या ऐड हो रहा था
नॉइस ऐड हो रहा था और उसी नॉइस और वहां पे कोई भी फीडबैक अपन ने नहीं लगाया था, ना पॉजिटिव फीडबैक ना निगेटिव फीडबैक, इट इज ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी फीडबैक न होने के कारण नॉइस के एंटर होने के चांसेस ज्यादा रहते थे। तो कंपैरेटर में आप लोग स्मिथ ट्रिगर में यहाँ पे निगेटिव फीडबैक को ना यूज करते हो, यू विल गोइंग टू यूज हियर पॉजिटिव फीडबैक, जो कि उसमें आने वाले नॉइस को अवॉइड करने के लिए काम आएगा। देन इट रिड्यूसेस द ट्रांजिशन टाइम भी रिड्यूस करेगा। स्मिथ ट्रिगर में क्या यूज कर रहे हैं अपन, इट इज अ स्क्वायरिंग सर्किट, देन इट कैन बी यूज्ड टू convert any irregular shaped waveform into square wave. It is one of the comparator which is with a positive feedback, and यहाँ पे आप लोग पॉजिटिव फीडबैक क्यों एम्प्लॉय करते हैं और उसके रीजन क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। देन नेक्स्ट सर्किट डायग्राम देखो, दिस फिगर शोज अ सर्किट डायग्राम फॉर स्मिथ ट्रिगर। आप लोग देखोगे दिस इज अ ऑप एम्प and this op-amp consists of the two terminals. One is the inverting terminal and the second one is the non-inverting terminal. As the non-inverting terminal having the reference voltage, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपैरेटर में आप लोग इनपुट सिग्नल अगर एक टर्मिनल को देते हो तो अनदर टर्मिनल उसका क्या रहेगा, रेफरेंस, मतलब वी रेफरेंस आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, बट थ्रू द वी रेफरेंस वी विल कनेक्ट हियर द पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पे एक फीडबैक रजिस्टर एज ए फीडबैक एलिमेंट आप लोगों ने यूज किया है, जिसके कारण सिग्नल में आने वाले मतलब इनपुट सिग्नल से आने वाले अगर कोई भी नॉइस उसमें ऐड होता है तो उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव कनेक्ट हियर पॉजिटिव फीडबैक। तो दिस इज अ कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ अ स्मिथ ट्रिगर। अगर आप लोगों ने इनपुट सिग्नल जो भी टर्मिनल को दिया है उसी टर्मिनल के साथ उसका डायग्राम होता है। तो यहाँ पे देखो इन्वर्टिंग टर्मिनल को आप लोगों ने इनपुट सिग्नल दिया है, दैट्स व्हाई दिस स्मिथ ट्रिगर इट इज अ इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर with a positive feedback. Is that clear to everyone? I hope everyone understand the circuit diagram of Smith trigger. Then how it works? Now Smith trigger is basically a comparator. A Smith trigger is basically a comparator and its output remains either at positive saturation. If the output is plus Vsat, if the output is plus Vsat, then the value of V1 is. कंपैरेटर है, पॉजिटिव सैचुरेशन में वर्क करेगा। जैसे आउटपुट अगर Vsat पे आता है तो V1 की वैल्यू क्या है। अभी आप लोगों को पता है Vsat कब आता है कंपैरेटर में और माइनस Vsat कब आता है। अगर आप लोगों ने इन्वर्टिंग टर्मिनल दिया है तो साइनोसाइडल वेव अगर आप यूज करते हो तो आप लोगों का अगर इंक्रीज हो रहा है क्या, इनपुट सिग्नल अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप लोगों का डिफरेंशियल वोल्टेज जो भी है वो निगेटिव रहता है, जिसके कारण आप लोगों का सिग्नल जो है वो निगेटिव सैचुरेशन में आता है। और वही अगर पॉजिटिव है तो आप लोगों का पॉजिटिव में ही जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप लोगों ने वोल्टेज पॉजिटिव को मतलब इनपुट सिग्नल अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका डिफरेंशियल वोल्टेज डिक्रीज होता है। दैट इज नथिंग बट योर स्मिथ ट्रिगर। जैसे आप लोगों की वेवफॉर्म जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के लिए थी, सेम वेवफॉर्म यहाँ पे आप लोगों के स्मिथ ट्रिगर के लिए है, बट rather than that of the zero crossing detector, here two terms are regenerate which is nothing but the upper threshold voltage and the lower threshold voltage, जिसको अपन डिस्कस करने वाले आगे। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या रहेगी, V1 is equals to plus Vsat into R1 upon R1 plus R2. This is a voltage divider rule, you already known about it. तो आप लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के V1 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की। देन व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज Vsat, when the output voltage is Vsat, the voltage across the resistor R1 is called as the upper threshold voltage. जैसे मैंने आप लोगों को बताया वहां पे आप लोगों का अगर आउटपुट वोल्टेज प्लस Vsat है तो आप लोगों का जो आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस अगर रजिस्टर है उसके अक्रॉस अगर आप लोगों का वोल्टेज मेजर करते हो आप लोग तो उसको बोलते हो आप क्या, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसको अपन बोलेंगे VU2P और उसके लिखेंगे अपन VUTP इज इक्वल टू प्लस V1 इज इक्वल टू प्लस Vsat इंटू R1 अपॉन R2। ठीक है, उसके बाद में लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या रहता है, इफ सपोज VO इज इक्वल टू माइनस Vsat, मतलब VO अगर आप लोगों का निगेटिव सैचुरेशन में जा रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज रेफर्ड एज अ लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सेम वेवफॉर्म आपको मैंने जैसे आप लोगों को इन्वर्टिंग कंपैरेटर के बताए थे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में, सेम वेवफॉर्म आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना है और जिसको अपन बोलेंगे क्या, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसको लिखेंगे अपन VLTP, यहाँ पे LTP चाहिए था, इज इक्वल टू माइनस V1 माइनस Vsat इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो दिस इज ऑल अबाउट द
upper threshold voltage and the lower threshold voltage, these both the terms are regenerate into Smith trigger only. यहाँ से आगे आप लोगों को कहीं पे भी LTP और UTP दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे Smith trigger क्या है, बेसिकली एक कंपैरेटर है जिसमें आप लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक यूज करने के कारण यहाँ पे दो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं. वन इज द अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड द सेकंड वन इज द लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज. अभी इसका वेवफॉर्म क्या है देखो, दीज आर द वेवफॉर्म्स ऑफ स्मिथ ट्रिगर. सपोज आप लोगों ने यहाँ पे इनपुट में साइन वेव दिया है, तो इनपुट में ही आप लोगों ने इनपुट के तरफ से ही आप लोगों ने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया था अपन ने, पॉजिटिव फीडबैक. थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक जैसे जैसे जीरो को क्रॉस करके आप लोगों के सिग्नल, अगर आउटपुट वोल्टेज अगर पॉजिटिव में है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है प्लस वी सेट, तो वहां पे जो वोल्टेज जनरेट होगा दैट इज द VUTP. वही अगर आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज निगेटिव सैचुरेशन में है, तो जिसके कारण वहां पे जनरेट होगा VLTP. तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे निगेटिव इन्वर्टिंग होने के कारण यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव सिग्नल है, तो यहाँ पे आप लोगों को निगेटिव मिलेगा. वही अगर पॉजिटिव के लिए यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव के लिए यहाँ पे निगेटिव. सेम क्लियर. तो यहाँ पे आप लोगों का वेवफॉर्म जो है वो कंपैरेटर का जैसे था सेम वैसे ही यहाँ पे रहने वाला है. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्मिथ ट्रिगर एंड देयर वेवफॉर्म. अभी एक न्यूमेरिकल अपन देखते हैं उसके बेस पे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक थोड़ा सा हिस्टेरिसिस ग्राफ भी रहता है उसमें. द रीजन बिटवीन द VUTP एंड द VLTP वेयर द आउटपुट डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स. मतलब जो UTP और LTP के बीच में जो एक रीजन क्रिएट होता है जहां पे आप लोगों का आउटपुट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, मतलब आउटपुट ना VSAT में जाने वाला है ना माइनस VSAT में आने वाला है, तो उस वैसे रीजन को आप लोग क्या बोलते हो, डेड जोन बोल सकते हो या फिर हिस्टेरिसिस बोलते हो या फिर बैकलैश बोलते हो. तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया गया है. दिस इज द डायग्राम फॉर द, इट इज नोन एज द हिस्टेरिसिस ग्राफ. बराबर है. तो यहाँ पे 0 VLTP VUTP. जैसे आप लोगों का ये जो कंप्लीट रीजन है, मतलब ये जो बीच का रीजन यहाँ पे फॉर्म होगा, मैं बता देती हूँ आप लोगों को ड्रॉ करके. ये जो रीजन है ये इन बिटवीन VUTP एंड VLTP, इट इज कॉल्ड एज अ, इसको अपन बोलेंगे क्या, हिस्टेरिसिस और डेड जोन. मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता. सिर्फ सिग्नल क्या है VLTP से VUTP से, और आप लोगों को सिर्फ किससे मतलब किसके साथ काम है, प्लस VSAT माइनस VSAT, VLTP एंड VUTP. तो यहाँ पे जो सिग्नल आप लोगों का आने वाला है इन बिटवीन दिस VUTP एंड VUTP, जो भी रीजन रहेगा इसको अपन बोलेंगे क्या, डेड जोन. उसके लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला है कि VH इज इक्वल टू VUTP एंड माइनस VLTP इज इक्वल टू, ऑलरेडी वी आर हैविंग अ फॉर्मूला फॉर VUTP एंड VLTP. वही फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करना है, माइनस माइनस गेटिंग प्लस हो जाएगा और वी विल गेट हियर 2 VSAT R1 upon R1 plus R2. So this is all about the Smith trigger which is consist of the वेवफॉर्म्स डायग्राम्स. डायग्राम का वर्किंग कैसे होता है, यहाँ पे दो वोल्टेज आप लोगों को मिल रहे हैं, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज. उसके बाद में अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बिटवीन जो रीजन आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस ग्राफ बोलते हैं. उस हिस्टेरिसिस ग्राफ को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे देखा. इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल अपन देखते हैं. देखो, for a Smith trigger with op-amp, find the threshold voltage VUTP and VLTP where R2 is equals to 150 kilo ohm and R1 is equals to 100 kilo ohm while Vin is equal to 500 millivolt sine wave. Saturation voltage may be vary from plus minus 15 volt. Find the hysteresis voltage. कैसे कैलकुलेट करना है देखो, VUTP का फॉर्मूला वी आर हैविंग, आप लोग कैलकुलेट करके देखो. ऑलरेडी all of you having a calculator, you will be able to calculate the value of VUTP. अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, VSAT यहाँ पे दिया हुआ है देखो, सैचुरेशन वोल्टेज प्लस माइनस 15 वोल्ट, तो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे प्लस 15 पुट करेंगे. उसके बाद में आप लोगों को किलो ओम में आप लोगों को दोनों वैल्यूज दिए हुए, दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करना और वी विल गेट हियर द वैल्यू. उसके बाद में VLTP को अपन फाइंड आउट करेंगे. फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे प्लस 10 मिलीवोल्ट मिलेगा, वही यहाँ पे माइनस 10 मिलीवोल्ट मिलेगा, और देन आप लोग यहाँ पे हिस्टेरिसिस वैल्यू निकालोगे तो वी विल गेट हियर 20 मिलीवोल्ट. उसके बाद में डायग्राम भी निकालना है आप लोगों को. वेवफॉर्म देखो, प्लस VSAT माइनस VSAT, आप लोगों को जिस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे स्मिथ ट्रिगर की वेवफॉर्म निकालनी है. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल
and all the concept about the Schmidt trigger. So this lecture summarizes as we will discuss here सर्किट डायग्राम ऑफ स्मिथ ट्रिगर अपन ने देखा था. उसके बाद में आउटपुट वेवफॉर्म्स विथ हिस्टेरिसिस ग्राफ, ये भी आपने पढ़ा. So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about here विंडो डिटेक्टर. यहाँ पे अपन ने विंडो डिटेक्टर पढ़ेंगे, ना कि स्मिथ ट्रिगर ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है. तो यहाँ पे अपन देखेंगे क्या, विंडो डिटेक्टर. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.